अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट कॉर्नर। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा स्पेशल शो है जिसका नाम है हम सब का पाकिस्तान। हम सब का पाकिस्तान से मुराद मेरे से पाकिस्तान और मैं पाकिस्तान से हूं। सो वो सब लोग जो कि पाकिस्तान को बनाने में कोई ना कोई किरदार अदा करें, वो हमारे ख़ास मेहमान होते हैं। सो आज इसी तरह के ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान को आलमी दुनिया में बताया कि वो बहुत सारी सलाहियतों का मालिक है। सो लेट्स वेलकम राविश जाहिद विद अस। हम सबसे पहले इनको जानते हैं कि इनका टाइटल क्या है, क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम राविश। वालेकुम How are you? I'm good. How are you? I'm good, alhamdulillah. Welcome back to Pakistan once Thank again. you, thank So, you. अच्छा राविश, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, what is the title that you won and what is the speciality of the title? Sure. The title that I won is Mrs. Pakistan World 2020 और Okay. इसके headquarters टोरंटो में है। Miss Sonia Ahmed is the president of this organization. Okay. और इस title का यही है because it's a Mrs. category, तो इसमें married होना ज़रूरी है। It's for Okay. married women only. अगर कोई single वुमेन जो है वो इंटरेस्टेड हैं तो वो सिंगल की कैटेगरी में अप्लाई करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिस। और जो Okay. मर्द हैं, जो आदमी हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो मिस्टर की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। Okay. So normally how many contestants were there? So normally every year vary करता है, it depends how many participants are participating in the event. This year there were 20 और ये वो लोग थे वो पाकिस्तानी born and raised थे या वो पाकिस्तानी थी ख़वातीन जो पूरी दुनिया में है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो US है, UK है, कनाडा है। They if as long as you are a Pakistani you can apply. अच्छा, the 20 were from Pakistan या they were the total number of participants? No, 20 all the women were from Pakistan क्योंकि ये Okay. टाइटल पाकिस्तान का है। Okay, this so is you specific. have to be you have to be Pakistani and once you win the title then once you become a winner फिर आप international pageants में जाते हैं और पाकिस्तान को represent करते हैं। So Ravish, what was the feeling when you got the title representing Pakistan all over the world? What was the feeling that you had at that point of time? I was very happy, extremely happy. I have no words. हर इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाता है and I'm always out of words. The only reason why is because when I applied, I did not think that I'm gonna win because obviously there were more pretty women that were more pretty than I am. And I was not very confident, but I think, as I said, and I have told in a lot of other interviews, that this pageant contest and beauty pageants are not only about your outside beauty. आपकी overall personality के ऊपर होता है, and I think those were the only pluses that helped me win over other women. And it's an overall achievement and success story of your life, जिसकी basis पे वो pick करते हैं winner को। Definitely. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा, there would be like lot of people जो इस contest में participate करना चाहते हैं. So what recommendation would you give to them? किस तरीके से वो इस contest में participate कर सकते हैं? So my only recommendation to them is first of all work on yourself, overall personality पे काम करें, education का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ें because education is the most important factor. किसी भी आप beauty pageant में चले जाएं, they do check your intelligence, they do check your IQ. Beauty is part of it, but yeah, it's an overall personality. तो grooming ज़रूर अपनी बरकरार रखें, साथ ही साथ education को पकड़ के रखें, education का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ें। मैं married हूँ, I have a husband, but still I'm a student. मैं पढ़ रही हूँ, मैंने education को नहीं छोड़ा। तो मैं तमाम अपनी देखने वाले viewers को सबको यही बोलूँगी कि yes, to be what you want and to be successful, you need to have education. Education should be your priority. Definitely. Ravish, beauty is one thing that Yeah. keeps you stand out. So what other factors do you think are important to be a Miss Pakistan? So other factors are obviously, as I said, intelligence, your success in your life, your accomplishments, your ambitions कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, what is your goals in your life. अगर I think it's not only about कि आपने एक दिन अप्लाई किया and then you win the title and then you become a winner और उसके बाद आपने काम नहीं करना. It comes with a lot of responsibility. तो I Definitely. think the major categories कि जिस किसी ने भी इसमें participate करना है, he and she should know कि this title comes with a lot of responsibility. आपको बहुत ज़्यादा काम करना है. So yes, you should be responsible as well. अच्छा, इनफैक्ट दिस लीड्स टू अ न्यू क्वेश्चन. जब आपने बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. सो नॉर्मली यू हैव टू फेस द मीडिया, यू हैव टू फेस लाइक लॉट ऑफ सोशल पॉइंट्स, क्रिटिसिज्म भी होता है. सो हाउ डू यू हैंडल ऑल दैट थिंग्स बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट प्रेशर ऑल्सो. Yeah. So criticism तो हर फील्ड में होता है. I mean आप कहीं पे भी successful होंगे, there will be people who will not like you, obviously because they may be jealous or God knows what. तो criticism होता है, but always just stay positive and do not worry about other people. Just keep your focus and just keep going.
How supportive was the family? My family, my mother and father were not very supportive about this whole process. But yeah, my husband was very supportive and my in-laws were very supportive. And because I'm married, my parents were like, as long as your husband is happy, we are happy. So That's the basic Yeah. thing. So देखिए अब आपने ट्रैवल किया होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नाउ यू हैव अ डिफरेंट टाइटल, सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑन योर शोल्डर्स. हाउ डू यू थिंक कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे फुलफिल कर सकते हो? I think the best way to do is to show people how beautiful Pakistan is and to show the softer image of Pakistan, that how great Pakistan is. Pakistan वो नहीं है जो हम लोग सिर्फ मीडिया में और न्यूज़ में देखते हैं. Pakistan is a lot more beautiful than what it is shown as. और आई थिंक कि जब हम सॉफ्टवेयर इमेज पाकिस्तान का पेश करते हैं तो लोगों की आइडियोलॉजी चेंज होती है. उसके साथ आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, इफ़ आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज अ गुड कंट्री, तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा टूरिज़म इंक्रीज़ होगी. अ लॉट ऑफ पीपल वुड लव टू कम टू पाकिस्तान, विज़िट पाकिस्तान. और उसके साथ साथ मेरा सबसे बड़ा जो गोल है लाइफ में इस टाइटल के साथ काम करने का, वो यही है कि मैं जितनी ज़्यादा NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएट हो सकती हूँ मैं हूँ, ताकि मैं सोशल वर्क करूँ. और साथ ही साथ मेरा सबसे बड़ा गोल है कि मैं इक्वालिटी पे काम करूं, जिसमें जेंडर इक्वालिटी आ जाती है, एज वेल एज मेजॉरिटी माइनॉरिटी इक्वालिटी, एज वेल एज वर्क ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज. सो आई हैव अ फ्यू थिंग्स लाइंड अप. और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मेरा फोकस है वो है इंटरनेशनल पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना. दैट्स द ओनली रीज़न आई वॉन्ट द टाइटल, ताकि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकूँ. Ravish, आपने you have been into the international competition. To be very honest, where do you think Pakistani people lack? Is that confidence? Is that their beauty? Is there their intelligence level? Yeah, what is the area that you feel they should increase? आई थिंक हम लोग पाकिस्तान में टैलेंट भरपूर है. द ओनली प्लेस वेयर वी लैक इज़ दैट वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट सोसाइटी. और हमारे कल्चर में ये कि लोग क्या कहेंगे, हम कुछ करते ही नहीं हैं. बिकॉज एनीथिंग वी वांट टू डू वी आर लाइक व्हाट वुड पीपल से, और हम करने से पहले ही रुक जाते हैं. सो आई थिंक वो जो एक टैबू है, वो जो एक स्टिग्मा है, जब वो ख़त्म होगा सोसाइटी में से या लोगों में से, तो ऑब्वियसली हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा. बिकॉज हम लोगों की परवाह नहीं करेंगे और हमें लगता है कि हमारी जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं हम उन पे काम करेंगे, तो ऑब्वियसली एवरीवन वुड बी सक्सेसफुल. राविश, जब आपको पता लगा दैट दिस इज़ अ टाइटल, आपने सोचा कि आई विल जस्ट अप्लाई फॉर इट, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे? क्या था कि आई विल विन इट, आई विल जस्ट डू इट? उस टाइम तो आई वाज हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स ऑनेस्टली. ना मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आई वुड विन इट, बिकॉज एज आई सेड देयर वर वुमेन जो मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो इफ आई विल विन इट, बट आई जस्ट वांटेड टू डू इट फॉर एन एक्सपीरियंस. और मैंने वही किया. आई जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड आई लेफ्ट इट ऑन गॉड. आई डिड माई बेस्ट, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, और मैंने बस अपना बेस्ट दिया एंड आई लेफ्ट इट ऑन गॉड. और जब मैं बन गई तो आई वॉज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी, super excited, or I mean, I just do not have words, but I was extremely happy. Ravish, if we talk about the local industry, especially the fashion industry, normally girls have the tendency that they have to keep them slim and fit. Is that the only requirement to be a model, to be like a superstar? I think to be a representative in a pageant industry, yes, you do have to look fit, but you don't have to eat nothing to be, you know, like मुझे बस पतले ही रहना है और मुझे डाइटिंग करनी है. I think what I tell to everybody is just eat healthy. I mean, आप healthy खाएंगे तो आप healthy भी रहेंगे और weight भी आपका maintain रहेगा. You don't have to go through the struggle to lose weight. और pageant में ऐसा भी नहीं है कि you have to be fair. All those things don't matter. They are superficial things. As I said, skin, color, height, weight, वो चीज़ें सब superficial है. At the end, what matters is कि जब आप stage पर हैं और आपका नाम, आपके नाम के साथ आपके मुल्क का, कंट्री का नाम बोला जाता है, तो हाउ वेल आर यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री ओवरऑल. जब आपसे वो कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्या आप उसको आंसर भी दे पाते हैं या आप बस उधर खड़े हुए हैं. सो यू नो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली योर स्किन एंड कलर एंड ऑल दैट. तो मैं तो लड़कियों को यही कहूँगी, जितना मर्जी खाएं, बस हेल्दी खाएं. So did you practice all those things? आपने लोगों को आंसर करना सीखा या that was a natural talent that you had? I think वो मेरा नेचुरल टैलेंट था. शायद इसी वजह से मैंने ये भी सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी 12 साल की उम्र से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती आ रही हूँ डिफरेंट ममालिक में. तो मैं ऑलरेडी उस टाइम पे बच्ची थी जिसको कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी. सो आई थिंक इट इज़ माई हिडन टैलेंट आप कह लें या गॉड गिफ्टेड कह लें, कि उस टाइम से 12 साल की उम्र से आई हैव बीन डूइंग इट विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी उसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन गाइडेंस. मैंने सब कुछ अपने ओन पे किया. आई थिंक इट्स मोर लाइक मेरी एजुकेशन, मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस एंड ऑल दैट हेल्प मी टू बिकम हु आई एम टुडे. So can we say that you had a wish
और उस विश को पूरा करने के लिए यू हैड अ विल, सो व्हेन द Yes, विश एंड द विल exactly. कंबाइन, दैट इज द रिजल्ट. That is exactly what happened, yes. Any specific message that you want to give to our youngsters? मैं व्यूवर्स को यही बोलूँगी कि वर्क हार्ड, परसिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और गिव अप नहीं करें किसी चीज़ पे. आपको अगर कुछ करना है, जस्ट गो फॉर इट एंड जस्ट डू इट. Thank you, Ravish. It was Thank really nice you. talking to Thank you. you so much. And it's truly an honor to have you with us. Representing Pakistan Thank is you. definitely Same a here. big challenge. Thank you. Thank you for Thank you. joining us. Thank you. Thank you, viewers.